Assalamu alaikum and hello to everyone. My name is Ifral Islam and I am a proud student of Miss Sadia from Evo Chemistry. This video is kindly using pictures from Pixabay, Unsplash, Adobe Stock, FreePic and Dreamstime. Bismillahirrahmanirrahim, starting with the name of Allah, the most merciful and the most beneficent. Here in the first slide, you can see fire burning with the help of dry twigs. And on the second slide, you can notice some rusting on engine wheels, causing it to corrode and not working properly. Because these all are natural reactions which occurs by itself. Now here you can see a boy playing with a remote controlled car. But do you know that this remote and car is powered by a battery? Here are some different sizes of cells or battery. This car is powered by a battery, which means that we are giving it external stored energy. If we do not do it so, it will not move or do any work for us. So, the related topic that I'll be discussing today is galvanic cells. The topics which I will be holding are electrochemical cells, electrolytes and electrolytic cells. I'll be just giving an overview of these three above topics, but on galvanic cells I will give you a brief description. So, electrochemical cells. A cell which uses electrical energy to drive a chemical reaction is called an electrochemical cell. केमिस्ट्री में केमिकल्स के दरमियान रिएक्शन करवाने के लिए जिस सेल को बनाने के लिए दरमियान में इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ हो उसको इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स कहते हैं, क्योंकि केमिकल रिएक्टिविटी के दरमियान एक्सटर्नल एनर्जी भी बहुत ज़रूरी होती है. आगे हम पढ़ेंगे कि ये किस कंडीशंस में ज़्यादातर इस्तेमाल होती हैं. इलेक्ट्रोलाइट्स. A substance that conducts electricity when it is dissolved in water or in molten state is called electrolyte. एक लिक्विड सब्सटेंस जो कि एक सेल के दरमियान, जो कि अभी हम आगे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और गैल्वेनिक सेल में पढ़ेंगे, कि जो लिक्विड सब्सटेंस दैट इज़ यूज्ड फॉर द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. अब इलेक्ट्रिसिटी मीन्स फ्लो ऑफ electrons, so electrolytes make it possible for the flow of electrons to pass from one place to another, and one place to another will be electrodes, and I will be discussing them too. So the electrolytes are those substance which is usually dissolved in water and used as aqueous form or in molten state. Examples can be NaCl, KCl and hydrochloric acid means HCl and etc. Electrolytic cells. An electrochemical cell in which electrical energy is used to drive a chemical reaction is known as electrolytic cell. Chemical cells में रेंज में जो सेल इलेक्ट्रिसिटी को एक्सटर्नली इस्तेमाल करे कोई रिएक्शन को अंजाम देने के लिए, ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट तो नहीं करता, लेकिन इसके आउटर एक्सटर्नल पार्ट से जो इलेक्ट्रिसिटी मींस यूजिंग ऑफ बैटरी, तो जो बैटरी से एनर्जी मिलती है ये उससे अंदर केमिकल रिएक्टिविटी को परफॉर्म करता है इन रिजल्टिंग अ प्रोडक्ट विच वी रिक्वायर. Here is a diagram of electrolytic cell. It contains only one beaker. आप ये डिफरेंस हमेशा याद रखें कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में सिर्फ एक बीकर इस्तेमाल होता है और कंप्लीट सेल होता है, वो एक ही सेल होता है. तो लेफ़्ट और राइट में आपको दो मेटल बार्स नज़र आ रहे हैं, बट इन electrolytic cell or in cell range they are known as electrodes. First one is anode with the name of anion, means losing of electrons, and the right one is derived from cathode, means gaining of electrons, cation से बनाया गया है. इधर आपको ऊपर एक्सटर्नल वायर कनेक्टिविटी भी नज़र आ रही होगी, लेकिन उसकी कनेक्टिविटी बैटरी से हुई है ताकि पावर जनरेशन आसान हो सके और वो पावर जो जनरेट करे, और जो इलेक्ट्रोलाइट जो है नीचे, मतलब कि मेल्टेड सब्सटेंस और सॉल्यूशन जो है उसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव इनके ऑपोजिट रिएक्शन के दरमियान इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन जो उनको साथ में पावर मिल रही है उसके साथ रिएक्टिविटी अंजाम दे सकें.
Now for galvanic cell. The cell which involves spontaneous redox reaction to generate electricity is called a galvanic or voltaic cell. Okay, I use the term redox. Redox means both oxidation and reduction. So the name of the voltaic is given to this cell because Alessandro Volta discovered first cell. Alessandro Volta is a famous Italian physicist on which I will be giving a brief description in the next 2 slides. But for now, I use the term spontaneous. You know, it is very confusing indeed, but it means a physical or chemical change that occurs by itself is called spontaneous reaction or spontaneous process, जो खुद ब खुद हो जाए और उसको सिर्फ नेचुरल पावर होती है उसके लिए और कोई पावर नहीं रिक्वायर होती. Examples can include water flow from higher potential level to lower gravitational potential. Means जब पानी वाटरफॉल में ऊपर से नीचे तक गिरता है तो उसको कोई ह्यूमन फोर्स तो कंट्रोल करती नहीं जो दरमियान में हम खुद से रोक लें, बट जो ऊपर से नीचे उसका खुद आना है, नेचर जो इसका नेचुरल लॉ है ये उसके हिसाब से आता है. सो दिस इज कॉल्ड स्पॉन्टेनियस. एंड इफ यू ever see a term non-spontaneous means that human activity is involved. मतलब कि non-spontaneous में human को involve करना पड़ता है. जैसे electrolytic cell में humans ने आखिर external battery electricity दी तब जाके वो reactivity perform किया उसने. लेकिन galvanic cell में spontaneous reaction होता है, खुद ब खुद हो जाता है. बस आपने उसकी connectivity बस connect करनी है, उसकी dip जो उसका सामान होता है उसको ready करके साथ में बस जोड़ना है तो रिएक्टिविटी वो खुद करेगा. Now for Alessandro Volta, as I said, he is an Italian physicist, chemist and a pioneer of electricity and power. I know he has a relation with such a cell of electricity generation. तो यकीनन इसका बैकग्राउंड इलेक्ट्रिसिटी एंड पावर से रिलेट करता है तभी इसने ये इन्वेंट किया. तो now here's a model of this cell, means galvanic cell, and as you can see it is containing 2 beakers for the participation. First beaker is the half cell and the second one is also known as half cell. क्योंकि ये जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को अंजाम देता है, उसको परफॉर्म करता है, तो इसलिए इसको 2 बीकर्स चाहिए होते हैं फॉर कंप्लीट जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और गैल्वेनिक सेल में मेन डिफरेंस यही है कि इसके दरमियान में आपको सॉल्ट ब्रिज भी नज़र आ रहा होगा और इसमें आपको वोल्ट मीटर एक्स्ट्रा नज़र आ रहा होगा और आपको यहाँ पे जो इलेक्ट्रोलाइट है मीन्स द सोल्यूशन इज़ ऑल्सो reactive, and while in the electrolytic cell it is inert, means unreactive. If I explain it deeply, तो जिंक एनोड को फर्स्ट आप देख लें. चलो फर्स्ट स्पीकर को पहले देखते हैं कि जिंक एनोड में ऑक्सीडेशन होंगी मीन्स लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एज guessed from the name anion of for the name anode, means first electrode which will lose electrons. As you can see that it is connected with this external wire which is traveling from one end with connectivity of red one and is connected to कॉपर कैथोड. अच्छा मैं आपको एक और ये बात बताऊं कि जिंक जो है उसकी जो एनोड है मीन्स जो इलेक्ट्रोड इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं वो भी जिंक का बना हुआ है फुली, और एनोड जो है इसमें मतलब आप जानते हैं कि जिंक इज़ मोर रिएक्टिव तो इट विल लूज इलेक्ट्रॉन्स. तो ये एनोड प्लेस पे रखा गया है और इसको इलेक्ट्रोलाइट जिसके लिए इस्तेमाल किया गया है वो भी रिएक्टिव है. ये डिफरेंस थोड़ा बदल हो जाता है लेकिन कोई बात नहीं. तो यहाँ पर जो इसके सोल्यूशन की पार्टिसिपेशन ही यही है कि जिंक में के सोल्यूशन को रखा गया है क्योंकि ज़रूरी है, वरना ये जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कैन नॉट बी डन. और जब ये 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज करेगा तो एंड यू नो इट हैज़ टू गो समवेयर, so it will travel through the external wire black and then red. And now for cathode, copper cathode means that it will gain electrons. Copper will gain electrons, so it will अच्छा मैं आपको वैसे एक प्रैक्टिकली में बताऊँ ये असलियत में आपको कैसा लगेगा कि जैसे ही आप जिंक एनोड और वोल्ट मीटर और कॉपर कैथोड को डिप करेंगे सॉल्यूशन के अंदर तो
वोल्ट मीटर पे भी उसकी इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन अचानक से आपको मिलना शुरू हो जाएगी। जिंक जो है क्योंकि वो बहुत रिएक्टिव होगा तो उसने 2-3 मिनट में बहुत सख्त रिएक्शन करना शुरू कर देना है, बहुत ही हार्श रिएक्शन होगा। और जो कॉपर वाले एरिया में है क्योंकि ये थोड़ा सा कम रिएक्टिव है लेकिन रिएक्टिव ज़रूर है, तो इसके लिए ये है कि ये रिएक्शन थोड़ा 15 मिनट्स तक अपनी लिमिट ले जाएगा और आहिस्ता आहिस्ता ही सही लेकिन जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी विल बी पॉसिबल। तो वोल्ट मीटर से आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितनी इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन हुई है। ओके, एंड द ग्लास ट्यूब बिटवीन कनेक्टिंग दीज टू सेल्स, तो ये इसको सॉल्ट ब्रिज कहते हैं। इट जस्ट स्टेबलाइजेज द ओवरऑल केमिकल रिएक्शन सो एनीथिंग डज नॉट गो रॉन्ग इन दिस रिएक्शन। तो इसके अंदर इनर्ट केमिकल रखा गया, जैसे मैंने आपको पहले भी एक बताया था KCl इज इनर्ट, it does not react, so Cl is placed at the left and K is at the right for the stabilization of this whole cell so that electricity can be produced। और मैं आपको एक और की बताऊं कि अगर आपको रियल लाइफ में कभी प्रैक्टिकल करने को इसका मिले तो जिंक में ये होगा कि जैसे ही इन दोनों को डिप किया जाएगा तो जिंक को थोड़ा वक्त के बाद इसने नीचे से हल्का हल्का कम होना शुरू हो जाना है, थिन होना शुरू हो जाएगा या फिर शॉर्ट होना शुरू हो जाएगा। इतनी जल्दी नहीं, कम, बहुत हल्का हल्का। और जो कॉपर होगा वो जो जहाँ से इलेक्ट्रॉन्स असल में जो जाएंगे वो कॉपर में जब जाके एब्जॉर्ब हो जाएंगे तो इट विल बिकम अ लिटिल बिट थिक और अ लिटिल बिट लॉन्ग एंड इट विल बी वेरी अनस्टेबल। लेकिन ऐसा होता है फॉर एक्सट्रैक्शन और एनी इंडस्ट्रियल प्रोसेस। Now for bonus. Self-assessment exercise 7.5. Sketch a voltaic cell labeling cathode and anode and the direction of flow of electrons. Use the following chemicals. अच्छा, वैसे अगर ये क्वेश्चन बाय हार्ट समझा जाए तो ये बहुत आसान है। स्केच अ वोल्टेक सेल मीन गैल्वेनिक सेल आपने स्केच करना है, और कैथोड और एनोड फील्ड की लेबलिंग मतलब कैथोड विद द एरिया और द इलेक्ट्रोड विद which will be gaining electrons and the anode will be giving off the electrons in the direction of flow of electron भी लेवल करेंगे हम इंशाल्लाह। and use the following chemicals, और इन्होंने जो हमसे रिक्वायरमेंट मांगी है केमिकल रिएक्टिविटी की वो हमें नीचे दे दिए हैं। सिल्वर एंड जिंक, मतलब कि जिंक और सिल्वर में ये दोनों इलेक्ट्रोड्स होंगे, बट फॉर गेसिंग ऑफ एनोड एंड कैथोड अभी बताते हैं। इसके एक की भी इन्होंने दी है जो अगर आप गेस करें तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा ये। तो सोल्यूशन की जो बात हुई है वो सिल्वर नाइट्रेट है, मतलब सिल्वर के साथ होगा, सिल्वर नाइट्रेट विद जिंक सल्फेट। तो जिंक सल्फेट आगे केमिकल फार्मूला भी है, और बिकॉज जिंक विल बी डिप्ड इन जिंक सल्फेट एंड सिल्वर विल बी डिप्ड इन सिल्वर नाइट्रेट बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। एंड बिगेस्ट हिंट जो इसको हेल्प के तौर पे दे दिया इन्होंने कि जिंक इज़ मोर रिएक्टिव देन सिल्वर। इट मीन्स दैट जिंक विल बी प्लेस्ड एट द एनोड पॉइंट एंड सिल्वर विल बी प्लेस्ड एट कैथोड पॉइंट। अब इसके सबसे पहले हम आंसर देख लेते। फॉर द आंसर, when the whole area consists of question, so there is always a path leading to answers. So कंस्ट्रक्शन ऑफ गैल्वेनिक सेल। पेपर में अगर आपके पास कभी इसकी स्केचिंग के लिए क्वेश्चन आए तो आपके लिए मैं ये बोनस टिप दूंगी आपको कि आप इसकी अगर कंस्ट्रक्शन, रिएक्टिविटी एंड रिएक्शन जो आगे ऑक्सीडेशन रिडक्शन होती है और इसकी डायग्राम ज़रूर बनाएं, बिकॉज दीज आर बोनस पॉइंट्स फॉर यू एंड दे विल हेल्प यू इन गेनिंग ऑफ मार्क्स। तो ये आपके लिए बिल्कुल बहुत अच्छा रह जाएगा। तो कंस्ट्रक्शन को पहले देख लेते हैं। पॉइंट्स ज़रूर लिखते हुए हम बताएंगे कि a galvanic cell consists of the following parts: a zinc rod dipped in 1 molar solution of zinc sulfate. 1 molar means concentration. Molar is the concentration of solution which will be used in this reactivity. A silver rod dipped in 1 molar solution of silver nitrate. Silver nitrate, मैंने जैसे बोला था, same chemicals and same electrodes are very important for the generation of electricity. Now, and the third part will be salt bridge. I know I used the term salt bridge, but it is very easy to understand and remember.
So, salt bridge, it is an inverted U-shaped tube. Almost it is like a square shape, but U-shape bhi chalega. It consists of an electrolyte which is inert. Means electrolyte molten form में या फिर liquid state में कोई अंदर chemical available होता है जो inert होता है, unreactive, so that it just stabilizes the overall reaction of the chemicals. तो थर्ड पॉइंट है इसके लिए, अगर आप ये भी वैसे पेपर में लिखते हैं या फिर अपनी कॉपी में भी लिख लें तो इट विल नॉट बी रॉन्ग, इट विल बी वेरी गुड फॉर यू. एंड द थर्ड पॉइंट is it makes electrical contacts between solutions for continuous flow of electrons, ताकि कनेक्टिविटी दे रहे. और आपको मैं एक और बात बताऊं कि इनकी जो एंड होती है इन पे कॉटन बड इस्तेमाल होता है कि यू नो KCl can also react with the overall solution, तो इसलिए इसके कॉटन बड लगाया जाता है just to stabilize the overall reaction. Now for the salt bridge, I have placed a diagram, whole diagram for you to notice where the salt bridge, and it is labeled. पहले से लिखा हुआ है. तो salt bridge असल में बल्ब के नीचे जो स्टेटमेंट है salt bridge वो इस तरह की शेप का होता है. और यहाँ क्योंकि डायग्राम बनाई गई है तो बीकर्स बहुत दूर हैं एक दूसरे से, बट इन रियल लाइफ salt bridge इज़ वेरी स्मॉल इन साइज. ये सिर्फ और सिर्फ दरमियान में कोने में जोड़ दिया जाता है अकॉर्डिंग टू दी कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशंस. Now a voltmeter to measure electric current, because galvanic cell can just generate the electricity, so voltmeter is always required to record the electrical flow of electrons from one place to another. और ये हेल्पिंग इस वजह से होता है क्योंकि हम लोगों को कभी कभार इलेक्ट्रिसिटी की इंटेंसिटी जानने के लिए ये इट इज़ वेरी हेल्पफुल. Now for diagram, I have labeled it already but made a surprise for your diagram. First of all, we will need two beakers, then with zinc electrode and the silver electrode, but the zinc will be anode and silver will be cathode because zinc is more reactive than silver as labeled. अच्छा, जो जो जिंक है ये जिंक सल्फेट में डिप हुआ है जैसे मैंने आपको बताया था, बिकॉज वी हैव टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी. मैं कई बार रिपीट कर चुकी हूँ और ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए जानना. तो सिल्वर को सिल्वर नाइट्रेट में, बिकॉज इट इज़ नोन एज कैथोड, बिकॉज इट विल रिसीव द इलेक्ट्रॉन्स. नाउ फॉर अ सॉल्ट ब्रिज. Now salt bridge is completed. You will label it as salt bridge with KCl or any inert chemical you know. Now for the external wire connected with a voltmeter. Yes, it is all done. You can take a screenshot or do anything you would like. And you know this cotton bud you noticed, and voila, another cotton bud. These cotton buds are placed just to stabilize the chemical reaction. I repeat it again. बार बार बोल रही हूँ कि ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि कॉटन बर्ड्स के लिए आप ना कोई पेंसिल से लाइनें वगैरह जो होते हैं गोल गोल वो बना सकते हैं फॉर लेबलिंग अ डायग्राम, जिससे आपकी डायग्राम में लेबलिंग अच्छी हो और आपके जो पेपर में मार्क्स लगते हैं उनमें डिडक्शन ना ऑफ गैल्वेनिक सेल. एज जिंक इज़ मोर एक्टिव देन सिल्वर, जैसे हम लोगों को क्वेश्चन में हिंट भी दी थी, तो इस लिहाज से जिंक विल लूज इलेक्ट्रॉन्स. These electrons will be transferred to the silver electrode through external wire. लेकिन आपको याद है क्वेश्चन में हमसे एक और बात भी पूछी गई थी कि एनोड और कैथोड भी लेबल करना है. तो इसके लिए आप या तो डायग्राम पे लेबल कर लें या फिर रिएक्शन में डायरेक्ट स्टेटमेंट में बता दें कि जिंक electrode will bear positive charge and will become a anode because it is losing electrons, and for silver electrode will bear negative charge because it will become cathode as it gains the electrons. Each compartment is half cell. जैसे मैंने बताया था गैल्वेनिक सेल में जो दो बीकर्स होते हैं they are not known as one cell means two cells. बिल्कुल ऐसा नहीं है. तो फिर वन सेल इज़ नोन एज हाफ सेल. एक बीकर हाफ सेल होगा, दूसरा भी हाफ सेल होगा. जो इलेक्ट्रॉन्स लूज करेगा वो ऑक्सीडेशन प्रोसेस होगा. सो ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, मतलब कि हाफ रिएक्शन जो फर्स्ट एनोड पे हुआ था उसके लिए हम रिएक्टिविटी लिखेंगे, टेक्स प्लेस एट जिंक एनोड. जिंक एनोड मीन्स इट इज़ लूजिंग द इलेक्ट्रॉन्स
तो इसके लिए आप रिएक्शन लिखेंगे कि जिंक इन सॉलिड फॉर्म मीन्स इन एनोड सॉलिड फॉर्म it will lose 2 electrons as aqueous, plus 2 electrons means it has lost the 2 electrons, and the 2 electrons are now being transferred to the second half, means the second half cell, and which will be reduction half reaction which takes place at silver cathode. तो सिल्वर कैथोड पे जो रिएक्शन हो रहा है उसके लिए आपको पता है सिल्वर हैज़ अ टेंडेंसी टू गेन 1 इलेक्ट्रॉन, बट वी नीड 2 सिल्वर टू स्टेबलाइज द इक्वेशन. असल में 2 सिल्वर तो नहीं चाहिए होंगे, लेकिन क्वेश्चन को स्टेबलाइज करने के लिए 2 सिल्वर ज़रूर चाहिए होंगे हमें. तो 2 सिल्वर प्लस 1 मीन्स 1 आयन प्लस 2 electrons means it will gain 2 electrons and it will become 2 silver solid, means the cathode will start to become a little bit thick. So I hope that you have understood very well, and thank you so much for your time and attention. And please stay home, stay safe and be positive, as prevention is better than cure. Again, thank you and Allah Hafiz.